اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے آ رہی۔ ناگپور سے ہمارے رپورٹر شہباز نے بتایا کہ ناگپور اسمبلی اجلاس میں زوردار ہنگامے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلی بات کہ ناگپور اسمبلی اجلاس کے باہر اندر بھی ہنگامے ہو رہے ہیں اور اپوزیشن وہاں اندر بھی ہنگامے کر رہی ہے، اور اسمبلی ہواڑی ادھیویشن کے موقع پر باہر بھی زبردست انداز میں الگ الگ ڈیمانڈز اور مطالبات کو لے کر پارٹیاں ہنگامے کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے بھی زبردست آندولن کیا گیا۔ وقف بورڈ کے 13 مطالبات کو لے کر دھرنا آندولن کیا گیا۔ علماء بورڈ کی جانب سے ہر سال مانسون اور سرمائی اجلاس ممبئی اور ناگپور میں وقف بورڈ کے مطالبات کو لے کر دھرنا آندولن کے ذریعے حکومت سے مطالبات کیے جا رہے ہیں، جن میں قابل ذکر املاک کا پونا اور پربری سے سروے کا کام جاری ہے۔ اس سال بھی مہاراشٹر ریاستی وقف بورڈ کے 13 مطالبات کو لے کر 22 دسمبر کو یشونت اسٹیڈیم ناگپور میں صبح 11 بجے سے مطالباتی دھرنا آندولن پروگرام بورڈ کے قومی نائب صدر سینئر صحافی نایاب انصاری کی رہنمائی میں ہوا۔ اس دھرنا آندولن میں مہاراشٹر ریاستی صدر مولوی عثمان رحمان شیخ، ریاستی جنرل سیکرٹری محمد شہاب الدین سوداگر، اور ایسے ہی ریاستی نائب صدر قطب عالم پیر زادہ، ریاستی ترجمان صوفی نور العین صابری، پوری ٹیم اس وقت موجود رہی، اور خاص طور سے ناندیڑ ضلع سے فاضل غلام محمد ابوبکر قاضی، رتنا گیری ضلع سے صدر مولانا محمد الیاس عامر بغدادی، رتنا گیری شہر صدر مولانا زبیر صاحب، ناگپور شہر صدر مولانا نظام الدین انصاری، یہ پوری ٹیم موجود رہی۔ اور آل انڈیا علماء بورڈ نے یوں سمجھیے کہ وقف بورڈ کے مسائل کو لے کر زبردست آندولن کیا۔ جناب وجاہت مرزا جو ریاستی صدر ہے وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ آپ کے تمام مسائل کو حل کیا جائے گا۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी वहां पर मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, अकलियती रिजर्वेशन को लेकर जबरदस्त अंदाज में आंदोलन किया, जो इम्तियाज जलील की रहनुमाई और नेतृत्व में हुआ है। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। जी हाँ, कोरोना को लेकर रियासतों को, स्टेट्स को सख्त एहतियात बरतने के आदेश दे दिए गए हैं। मरकजी वजीर सेहत की तलब करदा आला सतही मीटिंग में T3 टेस्टिंग ट्रीटमेंट ट्रेसिंग के फार्मूले पर अमल करने पर जोर दिया गया है। वहीं पर यह भी खबर आ रही कि मोदी हुकूमत ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर के तौर पर यह इस्तेमाल होगी। और गुज़िश्ता कल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने तो साफ तौर से कहा कि हमारी इस कामयाब पदयात्रा को रोकने के लिए अब कोरोना का सहारा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत कोविड वबा की नई लहर से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसा वजीर आला भगवंत सिंह मान ने बयान दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोरोना को लेकर खबरें ये आ रही कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 रियासतों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। मगर कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी को निशाना बना रही है, तो कांग्रेस के एक नौजवान युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि कोरोना का बीजेपी से बड़ा खास रिश्ता है, इसे दिन और रात का भी है शोर। यानी कन्हैया कुमार ने गोया के बीजेपी पर तंज मारते हुए कहा कि कोरोना आता है तो इनको बताता है कितनी मैं स्पीड से चल रहा हूं, कब आऊंगा, और ये भी बता देता है कितना रहूंगा, कितनों को लेकर जाऊंगा, कितने मरेंगे। तो कोरोना का बीजेपी से खास रिश्ता है। यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि जब बीजेपी को मुल्क को खामोश करना होता है तो बीजेपी फिर कोरोना का इस्तेमाल भी करती है। और कन्हैया कुमार इसी पर खामोश नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि कोरोना पार्लियामेंट में तो रहता है, लेकिन शादी में जाते जाते छुट्टी पर चला जाता है। पीएम मोदी पार्लियामेंट में मास्क लगा कर जाते हैं, लेकिन शादी में जाने के लिए उन्हें मास्क की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रात में कोरोना आराम करने के लिए चला जाता है। और यहां तक कन्हैया कुमार ने कहा कि ये लोग भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और जब कुछ नहीं मिला तो नकली वीडियो बना रहे हैं। उमर खालिद को लेकर, जी हां, तिहाड़ जेल से आखिर उमर खालिद गुज़िश्ता कल बाहर आए। बहन की शादी में शिरकत के लिए 7 दिनों की अबूरी जमानत मिली है। हुक्काम के मुताबिक उन्हें जुमा की सुबह 7 बजे रिहा किया गया। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की एक अदालत ने 12 दिसंबर को उमर खालिद की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर की थी। खालिद ने 2 हफ्तों के लिए जमानत की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्हें 1 ही हफ्ता की जमानत दी गई है। आइए ऐसी दूसरी बड़ी और एक खबर आ रही है सिद्दीक कप्पन को लेकर। आप जानते हैं कि सिद्दीक कप्पन एक ऐसा जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, जो केरला से उत्तर प्रदेश सिर्फ एक दलित बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, हाथरस के वाक़े की रिपोर्टिंग करने के लिए निकला था। मगर योगी सरकार की बदनामी हो सकती थी, इसलिए उसे गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया था और 2 साल से कैद केरला का सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसे जमानत मिली है और जेल से निकलने का रास्ता साफ हुआ है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि नोटबंदी के खिलाफ जो अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, 2 जनवरी को उन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। ऐसी खबरें आ रही है। आप जानते हैं कि नोटबंदी से कितनी तबाही हुई, कारोबार ठप हो गए, कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, और नोटबंदी जिस बहाने को बताकर की गई थी वो सारे बहाने फेल हो गए। कोई आतंकवाद रुका नहीं, कोई मार्केट थमी नहीं, बल्कि बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, आतंकवाद तो इतना बढ़ गया है कि आप बॉर्डर के हालात देख सकते हैं। तो कुछ नहीं हुआ। आखिर नोटबंदी के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की थी। अब खबरें आ रही है कि इन अर्जियों पर 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि ये फैसला नोटबंदी का कैसा था।
हालांकि केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने नोटों की बंदी के फैसले का दिफा करते हुए कहा था कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का मकसद जाली नोट, भाई बहनों, ब्लैक मनी, दहशतगर्दी, टैक्स चोरी वगैरह रुक जाएगी। अब कितनी रुकी ये सब चीजें आप सब देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक दर्दनाक खबर मेरे निगाहों के सामने सिक्किम से आ रही है। जी हाँ, सिक्किम में एक सड़क हादसे में हिंदुस्तानी फौज के 16 जवान जुमा को उस वक्त शहीद हुए जब उनकी गाड़ी शिमाली सिक्किम के जीमा में गहरी खाई में गिर गई। जख्मी जवानों को तो हवाई जहाज से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मरने वालों में 3 जूनियर अफसर और 13 जवान शामिल है और 4 दीगर जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी 9324 फीट की बुलंदी पर वाक़ जीमा में एक तंग मोड़ से गुजरते हुए खाई में गिर गई। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में कितनी बदमाशी फैल गई है या कितना तासुब फैल गया है, उसका अंदाजा इस खबर से आप लगा सकते हैं। जी हाँ, अल्लामा इकबाल, कौन अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इस मुल्क को ऐसा गीत दिया कि जिसका सानी और मुकाबले में कोई गीत नहीं आया। जी हाँ, वही अल्लामा इकबाल जिसने इस मुल्क को ऐसा गीत दिया कि जिसका कोई सानी नहीं आया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत का मुकाबला आज तक कोई शायर नहीं कर पाया, मगर इतना अच्छा गीत इस मुल्क को देने वाले अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़म है जो बरसों से हम पढ़ते आ रहे हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बस। ये मशहूर नज़म एक स्कूल में पढ़ाई गई, उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई गई, तो जनाब इस नज़म के पढ़ाने पर प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। हिंदुत्ववादियों के एतराज़ पर मुकदमा दर्ज हुआ और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि मुकदमा दर्ज किया क्योंकि ये दुआ सरकारी स्कूल के रोजाना के शेड्यूल का हिस्सा नहीं है और इसका ताल्लुक एक खास मजहब से है। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तासुब, दुश्मनी और नफरतों के कितने ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है। और यही नहीं, इस नज़म पर ही विश्व हिंदू परिषद ने संगीन इल्जामात लगाए और कहा कि इससे मदरसे की नमाज है ये। यानी इन जाहिलों को ये भी नहीं मालूम है कि नमाज क्या है और नज़म क्या है। मदरसे की नमाज इसे करार देते हुए कहा कि हिंदू अक्सरियती इलाके के स्कूल में मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, मजहब की तब्दीली की तैयारियां की जा रही है। शिकायत मिलने पर प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और माहौल खराब करने के इल्जाम में FIR भी दर्ज कर ली गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मुस्लिम बेटे और मुस्लिम बेटियां ऐसे कारनामे लिख पढ़ कर अंजाम दे रहे हैं कि आज मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, समाज का नाम भी रोशन हो रहा है। ये अलग बात है कि समाज से कैसी नफरत की जा रही है हमारे समाज से, इससे पहले वाली खबर आपने सुन लिया होगा। चलिए आइए, बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक बेटी, टीवी मैकेनिक की बेटी ने हिस्ट्री बना दी और टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा फजाइया में हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून फाइटर पायलट बनने जा रही है। सानिया ने NDA इम्तिहान में 148वां रैंक हासिल किया। सानिया देहात कोतवाली थाना इलाके के एक छोटे से गांव जसपुर की रहने वाली है। सानिया ने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज मिर्जापुर से 12वीं का इम्तिहान पास किया और वो यूपी 12वीं बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। 10 अप्रैल को वो NDA इम्तिहान 2022 में शामिल हुई। इम्तिहान पास करने के बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। इत्तलात के मुताबिक सानिया 27 दिसंबर 2022 को पूना में NDA खिड़कों में शामिल होगी। सानिया के वालिद शाहिद अली जो पेशे से टीवी मैकेनिक है, उन्होंने कहा कि सानिया मिर्जा की
पहली फाइटर पायलट ओनी चतुर्वेदी को अपना आइडियल वो मानती है, वो शुरू ही से उन जैसा बनना चाहती थी। आखिर सानिया मलिक की दूसरी ऐसी लड़की है जिसे फाइटर पायलट के तौर पर मुंतखब किया गया है। उनकी वालिदा तबस्सुम ने भी बहुत ज़्यादा खुशियों का इजहार किया और कहा कि सानिया ने हमारे गाँव का और हमारे समाज का और हमारे मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू था। पूरे इजलास में चीन का मामला छाया रहा, लेकिन चाइना का चा बोलते हुए भी बीजेपी की चूं निकल रही है। कोई चाइना पर बात करने को तैयार नहीं है। और अभी अजीब खबर आ रही है कि जनाब मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही इजलास को खत्म कर दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सबकी मर्जी से ऐसा हो रहा है। यानी आप समझ सकते हैं, खबरें आ रही है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुकर्ररा वक्त से पहले खत्म, सभी फरीकों की रजामंदी से ये कदम उठाया गया, ऐसा वजीर पार्लियामानी उमूर का कहना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी भी दिन चाइना पर एक लफ्ज भी बहस करने को हुकूमत तैयार नहीं हुई। यानी चाइना के मामले में हुकूमत बहुत कुछ छुपा रही है। आखिरी बड़ी खबर भी नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने दी है कि नागपुर में जो असेंबली शुरू है, यहाँ पर भी बाकायदा जबरदस्त अंदाज में शिंदे एंड फडणवीस सरकार, यानी कुल मिला के बीजेपी सरकार पर जबरदस्त अपोजिशन हमला कर रही है और यहाँ पर भी फडणवीस और शिंदे की सरकार जो है अपोजिशन को गोलमोल करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त समाजवादी के एमएलए रईस शेख ने कहा कि अकलियती तरक्याती महकमे का फंड दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया। वहीं पर अब्दुल सत्तार जो शिंदे ग्रुप के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अबू आसिम आजमी अमीन पटेल ने जब हुकूमत को घेरा और कहा कि अकलियतों का फंड जाये होने नहीं देंगे। लेकिन रईस शेख का साफ तौर से ये कहना है कि अकलियतों को पहले तो ऊंट के मुंह में जीरा इतना फंड दिया जा रहा है और उस फंड को भी दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।